یہ جانا شروع ہو جائے یسوع راجا، تمہاری راہوں میں چلنے والے بنے۔ اے میرے خدا برائی کی راہ سے جو تمہاری زندگیوں میں راستے چلے پیارے خدا کلام نازل کر ہماری زندگیوں میں پیارے خدا یسوع کے نام سے آسمانی باپ تو ایک ایک کو چھو اور کثرت کی برکت دے خدا تو اپنے کلام کو نازل، سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں، بولے آسمانی باپ ہمیں تیرا کلام چاہیے، تو ہمارے ساتھ بول اور کلام کر، ہم تیرے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ہم اپنے دلوں کو خالی کرتے ہیں، ہم اپنے ذہنوں کو خالی کرتے ہیں، ہم تیرے کلام کو لینا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں تیرا کلام بھرے، ہمارے ذہنوں میں تیرا کلام آئے، کیونکہ کلام میں زندگی ہے، کلام ہماری بھوک کو مٹاتا ہے، ہم تیرے کلام کے لیے ایسے ترستے ہیں جیسے پیاسی ہرنی نالوں کو ترستی ہے، تیرا کلام روشنی ہے، تیرا کلام زندگی ہے، تیرا کلام نور ہے، تیرا کلام چراغ ہے، ہم چراغوں کی طرح روشن ہو جائیں، تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم نور بن جائیں، تو اپنے کلام کو نازل فرما، تو اپنے کلام کو نازل فرما، کیونکہ تیرا کلام ہمارے رویوں کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں کو بدل دے، ابھی اور اسی وقت ہم یقین کرتے ہیں ایسا ہو چکا ہے، تیرے کلام کے وسیلہ سے بڑی تبدیلی آ چکی ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں بڑی تبدیلی ہے، یسوع کے نام سے آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیت سے پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے 18 آیت سے ہم پڑھیں گے 25 آیت تک۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح قدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح قدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ بس یوسف نے نیند سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور وہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کا بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ اج دا جڑا ساڈا مضمون ہے وہ اے وے مقدسہ مریم اور یوسف کا عملی ایمان۔ ایمان بھی ہے تے عمل بھی ہے۔ اونچی آواز کہو، مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کا عملی ایمان۔ اور ان دونوں کے عملی ایمان کی وجہ سے خدا کے منصوبے، جو خدا کے فیصلے تھے، جو خدا کی مرضی تھی، اس دنیا میں پوری ہوئی۔ آمین۔ 3 چیزیں پوری ہوئی۔ کیا کیا پورا ہوا؟
खुदा के मंसूबे और खुदा के फैसले, शाबाश, और क्या पूरा हुआ? खुदा की मर्जी पूरी हुई। 3 बातें। ईमान के बगैर हम खुदा के मंसूबों को, हम खुदा की मर्जी को, खुदा के फैसलों को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए जो जरूरत है वो अमली ईमान की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का ईमान है कि यीशु मसीह पैदा हुआ है, आज से हजारों साल पहले वो पैदा हुआ है, वो इस दुनिया में आया है, उसने सलीब पर जान दी है, पर वो अपने ईमान पर अमल नहीं करते, अमली ईमान नहीं है। और वो काम होगा जिसके साथ ईमान के साथ अमल भी हो। जैसा उसका ईमान है वैसा वो अमल भी करे, वैसे उसके काम भी हो। अमाल का मतलब है काम। बहुत से लोगों का ईमान कुछ होता है और उनके काम कुछ और होते हैं। कहेंगे हाजी साहब मैं यीशु मसीह ते बड़ा ईमान रखना, इन्ने साल तो ईमान रखना ते टुरिया फिरना। तो टुरना फिरना ही अपनी मर्जी कि खुदा दी मर्जी ना टुरना फिरना। तेरा ईमान फिर यीशु मसीह ते वे अगर तू खुदा दी मर्जी ना चलना है, खुदा दे फैसलियां ते चलना है, जो खुदा दे फैसले ने वो तेरे फैसले ने, ते फिर तेरा ईमान अमली ईमान है। आमीन, आमीन। नहीं ते तू कौन है? गैर ईमानदार। क्योंकि कलाम च लिखा है यकूब दे खत च, बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है। जिस तरह जिस्म में से रूह निकल जाए तो जिस्म क्या हो जाता है? मुर्दा। अगर ਤੁਹਾਡਾ ईमान है वे ते ओ ईमान दे मुताबिक तुसी काम नहीं कर रहे ते फिर ਤੁਹਾਡਾ ईमान की हो गया? मुर्दा। आज लोगों का ईमान बड़ा है यीशु मसीह ते, पर काम नहीं करते होंगे, इसलिए उन्हों का ईमान की है? मुर्दा। तो उन्हें गीत बनाया है, साडा मुर्दा ईमान जवा दे मसीहा सुरजनहारिया। ਤੁਹਾਡਾ ईमान यीशु मसीह जिंदा कर सकता है। जेकर मुर्दा है ते मुर्दियां नूं और ना सिर्फ लाजर नूं जिंदा कर सकता है और ना सिर्फ दूसरे नूं जिंदा कर सकता है, ओ यीशु मसीह दा ईमान साडे ईमान नूं भी यीशु मसीह जिंदा कर सकता है, साडा मुर्दा ईमान जवा सकता है। हालेलुया। अगर किसी दे अंदर मुर्दा ईमान है, ओदा ईमान काम नहीं करता, ओ ये दुआ करे कि यीशु मेरा मुर्दा ईमान जवा दे। हालेलुया। मुर्दा ईमान जिंदा यीशु कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अब हम यहाँ पर गौर करते हैं कि यूसुफ की जो मंगनी थी वो किसके साथ होगी? मरियम के साथ हो गई। तो मरियम जो है उसका शोहर रासबाज था और मरियम हामला थी। मरियम क्या थी? उसके शोहर के अंदर शक पैदा हो गया कि मेरी बीवी क्या है? हामला है। जेडे रासबाज लोग ने ना, ਉਹ कोई गलत मलत गल्लां नहीं किसी के खिलाफ बोलते, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कभी गलत गल नहीं करते। ਉਹ पता की कहते ने, ਉਹ चुपके नाल छड्ड के ते साइड ते हो जाते। ਉਹਨੇ की किया? ਇੱਥੇ लिखिया है, वो रूल कुदरत की कुदरत से हामला पाई गई, पास उसके शोहर यूसुफ ने जो रासबाज था और उसे बदनाम करना। रासबाज की पहली क्वालिटी ये वे ओदा ईमान है, वो किसी को बदनाम नहीं करता। तुसी रासबाज जे बोलो, असी ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੋਮਤਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਮਸੀਹੀ ਹੋਈਦਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦੇ, ਕੁਝ ਯੂਸਫ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ पर कुछ ऐसे भी है ने वो अपने आप ईमानदार कहते हैं पर दूसरे के इल्जामात लाने तो बाज वो अपने आप मसीही ना कवे। वो मसीही के नाम से अज भी दबा है, वो मसीहत नूं बदनाम कर रहा है। मेरे अजीजो अपने आप नूं बदलो। ओदा ईमान वेखो, यूसुफ दा हुण ईमान देखना किवें चेंज हुंदा है। उन्हें की क्या है?
चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। उन्हें चुप करके पिछे हटन दा ते असीं की करने हैं अज कि चंगी तरह जदील ते करिए तेन फिर ही छड्डांगे। वो ईमानदार बंदा नहीं है, वो रासबाज बंदा नहीं। यूसुफ का ईमान आप चेक करना, यूसुफ क्या कर रहा है। उसने चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था। हाले किसी नूं नहीं पता, हाले अपने अंदर पहलों असीं सोचने आ कि मैं किहड़ी गल करनी है किहड़ी गल। इन्हां गल्लां नूं यूसुफ सोच रहा सी। जदों वो सोच ही रहा सी और वो बदनाम भी नहीं करना चाहता सी ते फिर खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा। हमें ख्वाब भी आते हैं, कभी कभी हमें ख्वाब खुदा की तरफ से आते हैं, कई तो शैतान की तरफ से भी होते हैं और खुदा की तरफ से होते हैं। ये ख्वाब खुदा की तरफ से था और उसको खुदा की तरफ से ख्वाब में फरिश्ता दिखाई दिया। आपने भी कई दफा ख्वाब में फरिश्ते देखे होंगे। खुदा आज भी अपने फरिश्तों को भेजता है और उसके पास, क्योंकि वो रास्तबाज था, वो किसी को बदनाम नहीं करना चाहता था, वो अपने राइट पर था और इसलिए खुदा ने उसके पास फरिश्ता भेजा। पर उसको क्या हो गई थी? गलत फहमी। कई दफा हम गलत फहमी में आकर बड़े बड़े नुकसान कर जाते हैं। कई शोर गलत फहमी में आकर अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं। पर अगर आप खुदा से पूछेंगे, खुदा हमारी गलत फहमियां दूर कर सकता है, कोई इंसान हमारी गलत फहमियों को दूर। दुआ करें, अगर बीवी के खिलाफ शोहर के ज़हन में गलत फहमी आ गई है, उसके साथ लड़ाइयां करने की बजाय, परेशान होने की बजाय, रोने की बजाय अपने शोहर के लिए दुआ करे बीवी कि खुदा ਇਹਦੇ ज़हन ਨੂੰ ਸੁਧਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੀ गलत फहमी दूर कर। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? अगर किसी बीवी ਨੂੰ ਉਹਦਾ शोहर गलत इल्जाम ला दे, ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ गलत, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? खुदा ने फरिश्ता भेज दिता, ख्वाब च दिखाई दिता फरिश्ता, और फरिश्ते ने आके की किया? फरिश्ते ने की किया? ख्वाब में आकर दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुद्दस की कुदरत से है। ए औरत गलत नहीं, ए ते ना इल्जाम ला। ए औरत बिल्कुल ठीक है, जितना तेरी मंगनी हुई है, अगर ਉਹਦੇ पेट च है ते ए रूल कुदरत दी कुदरत नाल ਉਹਦੇ पेट च बच्चा है, और रूल कुदरत दी कुदरत नाल हमला हुई है। वाहद पूरी दुनिया में, पूरी तारीख में एक औरत है जो रूल कुदरत की कुदरत से हमला हुई है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और कोई नहीं है, एक ही है जो रूल कुदस की कुदरत से हमला हुई है। प्रेज़ गॉड। और उसकी गवाही जमीन वालों ने नहीं दी, उसकी गवाही आसमान से आई है, क्योंकि रूल कुदस भी आसमान से नाज़िल होता है और फरिश्ते भी आसमान से जो खुदा के पास हैं वो आए उसके पास, और उसने उसको बताया है। जब खुदा किसी को बरकत देता है तो फिर खुदा उसकी हिफाजत भी करना जानता है। खुदा ने उसकी हिफाजत की अपने फरिश्तों को भेजकर, अपने फरिश्ते को उसके पास भेज दिया। तो उसने फिर क्या किया? उसने उसको बताया उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से ये खुदा का मंसूबा था। मुकद्दसा मरियम क्यों हमला हुई थी? किसके लिए हमला हुई थी? लोगों के लिए। किन के लिए? यहाँ पर क्या लिखा है? वही, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से खुदा ने मंसूबा दिया। उसका नाम क्या रखना? उसका नाम क्या रखना? कहाँ से यीशु नाम कहाँ से आया? जमीनियों ने रखा या आसमानी ने रखा? बेटा भी आ रहा है और उसका नाम भी कहाँ से आ रहा है? आसमान से, क्योंकि वो आसमानी है, वो जमीनी नहीं है। और फिर क्या कहा
कि वो लोगों को गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। उन्होंने पूरियां गल्लां दसियां ने। खुदा ने पहले 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਬੂਵਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਦੇਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਬੂਵਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਇਸ਼ 3:15 पढ़ो, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ है कि खुदा ने क्या किससे पैदा होगा, औरत की नस्ल से पैदा होगा। वो शैतान को कहा तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एडी पर डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। उन्हें कहा ए ओही औरत है जिहड़ी तेरी बीवी बनी है। हालेलुया। और ये ओही बच्चा आ रहा है जिहड़ा गुनाह दे सिर नूं कुचलेगा। हालेलुया। गुनाह सारियां दे सिर ते चढ़िया रहिंदा है। वाहद यसू है जिन्हें गुनाहां नूं आके कुचल दिता है, अपने पैरों थले लिंदा है। आमीन। और उन्हें सानू भी क्या है, देखो मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गुनाह हुण साडे पैरां थल्ले ले। किन्ने किन्ने नूं सिर ते चढ़ाया, जिन्हें सिर ते चढ़ाना जला के नूं सुट दो। आमीन। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਬੂਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇਗਾ, निजात। उसने कहा वहां लिखा है यशायाह नबी की मार्फत ये लिखा है, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। बकायदा उन्हें एक नबूवत और दसी है जिहड़ी यशायाह नबी ने की है और जिसका तर्जमा है खुदा हमारे। हालेलुया। तो उन्हें की किया, बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था। कहिए ना भाई जी ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਗਲਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਲਾਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਸ ਯੂਸਫ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਵੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਈਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। और उसको बीवी भी नहीं जाने, उन्हें उसको ना जानना जब तक कि उसके बेटा ना हो और उसका नाम यसू रखना। फिर उन्हें नाम की रखा। हालेलुया। सारियां गल्लां ते अमल किया। कलाम च जो लिखिया उन्हें उन्हें छड्डिया भी नहीं, उन्हें छड्डना सी, उन्हें अपनी बीवी नूं छड्डिया भी नहीं। फिर जो कलाम फरिश्ते ने किया ਉਹਦੇ ਤੇ पूरा अमल भी किया। क्या ਅਸੀਂ अमल करने नहीं करते थे आज तो इस कलाम से की करना है? ये यूसुफ का कौन सा ईमान है? अमली ईमान। उसने ईमान के साथ अमल किया है। तो मुकद्दसा मरियम का भी ईमान क्या है? अमली ईमान। जब आप लूका पहले बाब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा उसके पास फरिश्ता भेजा गया और उसने एक सवाल जरूर किया, मैं किसी मर्द को नहीं जानता। ये क्यों कर होगा? किंज हो सकता है? मर्द तो बगैर ते बच्चा पैदा नहीं हुंदा। मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती, किस तरह होएगा? तो यूसुफ नूं की दसा गया कि रूह कुद्दस की कुदरत, रूह कुद्दस उस पर नाज़िल होगा। उसको क्या बताया कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, ये खुदा की कुदरत से होगा और तुझ पर फजल हुआ है। फजल का की मतलब है ऐसा एहसान ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੌਲ ਕੇ ਮੁਆਫਕ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਆਸਾਨ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਮਾਰੀ ਹਾਮਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੋ, ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਸਨ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਸਾ ਮਰੀਮ ਤੇ ਹਾਮਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ ਬੱਚੀ। ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਹਵਾ ਔਰਤ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਗੇ ਅਦਨ 'ਚ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਗੇ ਅਦਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਲਾਨਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਾਗੇ ਅਦਨ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਨ ਦਾ मतलब है खुदा की हजूरी। और मुकद्दसा मरियम ने अमली ईमान करके पूरी दुनिया को फिर खुदा की हजूरी में दाखिल कर दिया। आज जो भी उस पर ईमान लाता है वो खुदा की हजूरी में जा सकता है। उसके ऊपर वो बल्कि रूह कुद्दस का मकदस बन जाता है, वो खुदा का घर बन जाता है। हालेलुया। खुदा उसके अंदर रहता है, खुदा का रूह उसमें बसता है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में ये बात लिखी है। आमीन। तो मुकद्दसा मरियम का ये अमली ईमान था। उसने ये फैसला कर लिया कि वो खुदा का जो फैसला है, खुदा की जो मर्ज़ी है, खुदा के जो इरादे हैं, मैं उनको पूरा करूँगी। उसने मंसूबे, अपनी मर्ज़ी को, अपने फैसलों को, अपने ख्यालों को, अपने इरादों को पीछे कर दिया और खुदा के फैसलों को, खुदा की मर्ज़ी को, खुदा के इरादों को पहला दर्जा दिया। जो कपड़े नीचे कर आप किसको पहला दर्जा देंगे? अही किन्नू पहला दर्जा देना जी? ਯਿਸੂ। शाबाश भाई, यूसुफ कहते ने यीशु। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਈ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। इंजन नहीं सकते। पहला दर्जा किसको देना है? खुदा को देना है अपनी जिंदगी में। मुकद्दसा मरियम ने पहला दर्जा किसको दिया? यूसुफ ने पहला दर्जा किसको दिया? अपने ख्यालों ने पिछे रखता, जेड़ा कहता मैं बदनाम नहीं करना चाहता, मैं उन्हें छड्डना चाहना। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੁਪਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्या ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ? ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਇਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਰਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜਾਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗੀ ਸੋ ਮਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਜੇ। ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰਨ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਮਾਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਸका कोई फायदा नहीं। अमली ईमान रखो। देखो उनको कहा गया, पता नहीं उनको किन्ने काम होंगे। ਜਦੋਂ ਹੈਰੋਦਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ? ਮਿਸਰ 'ਚ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚਾ ਮਿਸਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਭੁੱਲ गए और वो
यस्सु के इरादे, यस्सु के मंसूबे, यस्सु के फैसले, उसको पूरा किया। ये उनका अमली ईमान था। और उन्होंने पहला दर्जा किसको दिया अपनी ज़िंदगी में? यस्सु को। जब काना गलील की शादी हो रही थी, वहाँ पर बहुत से लोग आए थे और उनकी मैं ख़त्म हो गई। तो मुकद्दसा मरियम ने क्या कहा? यस्सु ने कहो, उन्होंने क्या मैं कर देनी है? उन्होंने किन्नू क्या? यस्सु को पहला दर्जा दिया। और यस्सु मसीह ने अगर उनकी मैं ना पाती तो उनकी कितनी बेइज्जती थी। शादी पे आए हुए मेहमानों को जब चीज़ नहीं मिलती तो कितनी बेइज्जती होती है, बहुत ज़्यादा। तो यस्सु मसीह ने पानी से मैं बनाकर उनकी इज्जत को महफूज किया। यस्सु मसीह हमारी इज्जतों का रखवाला है। इज्जत तेरी वदावेगा याकूब दा याकूब का। वो हमें इज्जत देता है, वो हमें बेइज्जत नहीं होने देता। अगर आपकी ज़िंदगी में यस्सु होगा, आपको कोई बेइज्जत नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। वहाँ पर यस्सु था, इसलिए उनकी इज्जतें बच गईं। आपकी बेटियों की, आपकी इज्जत, आपकी बीवी की इज्जत, सबकी इज्जतें बरकरार रहती हैं यस्सु मसीह के साथ। वो हमारी इज्जतों को बचाता है, हमें जलील नहीं होने देता, हमें बेइज्जत नहीं होने देता। और हमें भी उसके कलाम पर अमल करना है, अमली ईमान रखना है। और अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा किसको देना है? वो जोड़ा मिसाली जोड़ा है। बेशक उन्होंने को कुछ नहीं, वो जो बड़े अमीर सन, वो बकरे, वो बैल कुर्बानी करने वास्ते लैके जाते हैं। जो गरीब होंगे सन उन्होंने कहा जी तुसी आटे के 2 पेड़े लै आओ, तां भी तुहाडी कुर्बानी कबूल हो जाए। कबूल हो जाएगी। अज लोग इन्ने जोगे भी नहीं ना, आटे के 2 पेड़े भी नहीं खाते। फिर उन्होंने की किया, वो एडे अमीर नहीं सन, उन्होंने कुमरियां का जोड़ा लैके गए कुर्बानी वास्ते। जो पहला बच्चा लोग की लैके गए, कुमरियां का जोड़ा लैके गए। अज असी की करने, असी कलाम से पूरा अमल नहीं करते। अमली कलाम होना चाहिए साडी जिंदगी के। कलाम से की करना है? अमल। उन्होंने कलाम से अमल किया, पूरी दुनिया को बरकत मिल गई। अज तुहाडे वसीले नाल, तुहाडे अमली ईमान नाल खुदा पता नहीं किन्नू किन्नू बरकत देंदा है। और असी किन्ने लोकां दीयां बरकतां दबा के बैठे हैं। पता नहीं किन्ने लोकां दी इज्जत तुहाडी वजह तो बचनी है और उन्हां दीयां इज्जतां की हो रही ने, खराब हो रही हैं। अगर तुसी अमली ईमान दिखाओगे, यूसुफ ने, मरियम ने ऐसा एक खानदान बनया जिन्होंने अमली ईमान दिखाया। अज किन्ने मियाँ बीवी ने ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਮਲੀ ਈਮਾਨ नहीं सन रखते, आज जो फैसला करते हैं कि आज तो बाद असी अमली ईमान रखेंगे। मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ की तरह हम अपना ईमान करेंगे और ईमान के साथ अमल भी करेंगे। कितने ऐसे हैं इसमें से कि कोई नहीं दिल करता, जरूरत नहीं हैगी। किन्ने च जरूरत है वे? अपना हाथ उच्चा खड़ा करो। हाँ जी, वाकई करना चाहते जी, थले नहीं करना। जो मैं कहांगा उदों थले करना जी। उच्चा हाथ करो, उच्चा ताकि पता चले। मैनू नहीं विखाना, किनू विखाना है? खुदा नू। ये हाथ तुसीं किनू विखाना है? खुदा इत्थे मौजूद है, तुहाडा हाथ देखण दिया है। वो तुहाडी मदद वास्ते, जिस तरह यूसुफ की मदद वास्ते फरिश्ते भेजे, जिस तरह मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता भेजा, वो तुहाडी मदद वास्ते अपने फरिश्तिਆਂ ਨੂੰ घल्लेगा ताकि तुसीं इस गल ते पूरे उतर सको। अपने हाथ दोवें चुको, हुण दोवें हाथ चुको, मेरे नाल मिल के दुआ करो। दोवें हाथ चुक के मेरे नाल मिल के दुआ करो। ऐ आसमानी बाप, यीशु के नाम से हम तेरे पास आए हैं। आज के बाद हम भी मुकद्दसा मरियम और यूसुफ की तरह एक मिसाली जोड़ा बनेंगे। हम ईमान अमल के साथ रखेंगे। हमारे फैसले जाते रहे, हम यकीन करते हैं हमारी मर्जी हमारी ज़िंदगी से जाती रहे, हमारे मंसूबे हमारी ज़िंदगी से जाते रहे। आज के बाद ये खुदा के मंसूबे हमारे मंसूबे हैं, खुदा के फैसले हमारे फैसले हैं, खुदा की मर्जी हमारी मर्जी है। हम भी उसी तरह ईमान के साथ इमाल भी दिखाएंगे जिस तरह के यूसुफ और मरियम ने दिखाया। ऐ पाक रूह हमारी मदद का, ऐ आसमानी बाप यीशु के नाम से हमारी मदद का। हम अमली ईमान दिखाएं और अपनी जिंदगी में पहला दर्जा खुदा को दें। यीशु के नाम से आमीन।